Morning children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 2. So children, in our previous video we were doing chapter 7 of this book. बच्चों हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है. आज हमने जो कल पढ़ा था उसे एक बार दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला पार्ट पढ़ेंगे. तो चिल्ड्रन, लेट अस रिवाइज व्हाट वी डिड यस्टरडे. Question number C. Write T for true and F for false. Children, our first statement is notepad is used to draw pictures with a mouse. So children, as we have studied in the chapter, notepad is used for typing text in the computer, not for drawing the picture. So first statement is wrong. So children, the first statement here is wrong. So you will write here F for wrong statement, yani F for false. You can type your name in notepad. So children, as we have studied, we can type letters, words or sentences in the computer using notepad. So using the letters you can write your name also. So second statement is true. आप letters को use करके अपने नाम को लिख सकते हैं, इसीलिए second statement सही है कि you can type your name in notepad. You can do addition with a calculator. So children, as we have studied in the chapter, calculator is a program which is used for calculating, calculation, that is addition, subtraction, multiplication or division. So children, here it is you asked you can do addition with a calculator is true. Addition is also one of the calculation which we can do using the calculator. Now fourth statement, calculator is used for doing calculations. So children, this statement is also right कि calculator is the program which is used for doing calculation. So here also you will write true. So out of four statement children, first statement is wrong and the remaining three are true. Now coming to the next question. So children, next we have answer the following question. Question number D, we have answered the following question, and question number 1 is what is a notepad? So children, as we have studied in the chapter, notepad is a program which is used to type text in the computer. notepad वह प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट एडिटर. सो चिल्ड्रन, हम इसे टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, जहाँ पे हम जो हमने सेव करके रखा है उसको टाइम टू टाइम इफ़ यू नीड टू एडिट इट, हम उसे एडिट भी कर सकते हैं या रिव्यू भी कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नोटपैड? नोटपैड इज़ अ प्रोग्राम which is used to type text in the computer. Now children, question number 2. Here we have question number 2. Question number 2 is children, what is use of calculator? So children, as we have studied in the chapter, calculator is another program which is used for doing calculations. कोई भी calculation हो, चाहे वो addition हो, subtraction हो, multiplication हो, डिवीजन हो या उससे भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो या प्रॉब्लम्स हो, इट कैन सॉल्व विद इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम. कंप्यूटर हमें कुछ सेकेंड्स में या मिनटों में हमें सॉल्व करके दे सकता है. सो द कैलकुलेटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. कैलकुलेटर को हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर? द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर इज़ doing calculation, different types of calculations. So this is our second question. And third question, that is question number E, application based question. So children, since first chapter we have been studying as in every chapter we have question number E as application based question. As it is a computer is a language which is also based on application, तो हम जो भी हम इसमें पढ़ते हैं उसको हम अप्लाई भी करते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ई हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है. तो आज के हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में वी हैव निधि टाइप्ड. एज वी नो कि हम जो नोटपैड होता है वी कैन यूज़ नोटपैड एज अ
नोटबुक, हम एक नोटबुक की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम नोटबुक में पेज बाय पेज कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं या प्रोटेक्ट करके रखते हैं या सेव करके रखते हैं, प्रॉपरली कहीं रखते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम आए तो वी कैन स्टडी और रिवाइज फ्रॉम इट। तो यहाँ पर हम नोटपैड में भी नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जैसे कि पेजेस कॉपी के हम यूज़ करके नोट्स हर पेज पे अलग अलग लिखते हैं, हर दिन डेट डाल के, यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो, एंड आई helped you in making a document in which we wrote some we had written some difficult words of chapter 7। तो उसी तरह से हम अलग अलग पेज पे अलग अलग चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख करके एक नोटबुक बना सकते हैं। तो यहाँ पर वी हैव अ फ्रेंड निधि हु knows how to type in the notepad and she has typed a rhyme on a notepad and now she wants it to store it for a future use, और वो उसको फ्यूचर यूज़ करके स्टोर के लिए स्टोर करना चाहती है। तो अब उसके लिए वो क्या करेगी, she wants to keep it in her computer for the future use, for the how will she store this for the future use? So you are the one who are going to help her out in टेलिंग हर हाउ शी कैन सेव द डॉक्यूमेंट। जो भी उसने डॉक्यूमेंट बनाया है वो उसको कैसे सेव करेगी ताकि जो भी उसने लिखा है वो आगे यूज़ के लिए या फ्यूचर में यूज़ के लिए उसको स्टोर कर सके। तो यू विल टेल हर टू गो टू मेन्यू बार में वी हैव अ ऑप्शन ऑफ फाइल। जब हम फाइल खोलेंगे तो फाइल खोलने के बाद वी हैव अंडर द फाइल वी हैव सेव एज। तो हम सेव एज को क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो खुलेगा जिसमें इट विल आस्क द नेम ऑफ द फाइल। वहाँ पे हम फाइल का नेम डालेंगे, नेम डालने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम उसको सेव कर देंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ वी कैन सेव एनी डॉक्यूमेंट ऑफ फाइल फॉर फ्यूचर यूज़। हम यहाँ पे इस फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करके फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। सो दिस इज़ एप्लीकेशन, हियर यू आर गोइंग योर नॉलेज, हियर यू आर यूजिंग योर नॉलेज in telling निधि about how to store the document। तो यहाँ पे आपने जो चैप्टर से सीखा उसको आप अपने नॉलेज को निधि को समझाने में कि वो अपने राइम को या फिर अपने डॉक्यूमेंट जो उसने बनाया है उसको किस तरह से फ्यूचर में यूज़ के लिए सेव कर सकती है। तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को, अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वी कॉल इट एज एप्लीकेशन बेस्ड question. So children, I hope you all have understood the chapter. Now there are some more questions which are related to lab activities. So children, here we have question number 1. Open the notepad and type the following names. So children, you can open a notepad and write the name. We will be doing and practicing this in the online class by writing our name. And I am dash years old. Here also you can write how old you are. You will open a notepad and from the keyboard you will write these things or type these things and write easily. Open the calculator and solve the following. You can open a calculator and add 2 plus 8 equal to करके आप इसको कर सकते हैं। Now subtract 5 from 9. This also you can do easily. So we will be solving these questions in the online classes. In online classes I will solve and show you how to do these questions, Now here we have fun activities. Join the dots and draw a calculator now and color it. So children, here we have a calculator and the calculator is shown by the dots. You are going to join the dots and complete the picture of this calculator, and after that you can color it also. So children, this is all about our chapter 7, that is notepad and calculator. I hope you all have understood the chapter, and as I told you, lab activity we will do in the online classes. On the spot I will do and show it to you how you can do it. We have already done these things and once again we'll revise this. Now, so children, here today we are, children, from the beginning when we started chapters of this book, we discussed computer help us in many ways. तो कंप्यूटर ना सिर्फ हमारा काम करता है बल्कि जो भी हमारा काम करता है उसको स्टोर करके भी रखता है. सो कंप्यूटर हैज़ अ फैसिलिटी टू कीप द थिंग्स विच वी डू ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ time.
So children, as I have told you कि computer can remember things for a longer period of time, और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है. तो इसीलिए we have made this computer so that it can keep the things which we do on the computer for safely for longer period of time. So in this chapter children, as we know, the name of the chapter is storage device. So we have studied about the device in previous chapter. वो पार्ट्स जो कि हमारे लिए चीज़ों को स्टोर करके रखेगा, एंड दीज पार्ट्स आर द कंप्यूटर पार्ट. तो या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम अलग से कंप्यूटर में ऐड करते हैं और उसमें कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. सो अबाउट दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू read in this chapter. So let us see what is the chapter. Chapter 8, that is storage devices. As we know, storage means keeping something for longer period of time. किसी चीज़ को बहुत दिनों तक सेव करके रखने को हम स्टोरेज कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है स्टोरेज, एंड द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. तो यहाँ पे स्टोर का मतलब किसी चीज़ को सेफली प्रोटेक्ट करके कहीं रखना, और जिस चीज़ में हम रखते हैं, जिस थिंग में हम रखते हैं या टूल में रखते हैं, उसको हम डिवाइस कहते हैं. तो स्टोरेज डिवाइस इज़ द डिवाइस विच कीप्स आवर इंफॉर्मेशन सेफली फॉर अ longer period of time. Now children, in this chapter we are going to read about storage. What is storage? Storage क्या होता है? What is storage devices? अब जो हम स्टोरेज करेंगे उसको रखने वाले डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस करते हैं. तो व्हाट इट इज़? हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD एंड पेन ड्राइव. तो दीज आर द काइंड ऑफ devices which are used for storing the data or information. So children, hi friends, here we have Lappy. Once again we have met Lappy, and now Lappy is going to tell all about the things which we are going to read in this chapter. So here Lappy says, hi friends, you have already studied input output devices. In this chapter we are going to study different types of storage devices. So children, as we know, the things or the informations which we input in the computer, which we provide to the computer or which we give to the computer, are called input, and the devices used for doing providing these informations are called input devices. जैसा कि आप जानते हो, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इट वर्क्स ओनली व्हेन वी गिव द इंस्ट्रक्शन. तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर वो मशीन है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन देने पर या हमारे बताने पर ही कोई काम करती है. तो यहाँ पे जब तक हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ये कोई काम नहीं करेगी. तो वॉट एवर इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. हम उसे इनपुट कहते हैं. एंड द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू गिव दिस इनपुट और फीड दिस इनपुट और पुट इनटू द कंप्यूटर is called input devices. Similarly children, output devices. So whatever is processed and given by the computer in return of input is called output devices. हमारे input information को या instructions को input करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जो भी हमें रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. एंड दीज आउटपुट आर shown to us or given to us with using some devices, और इन devices को हम output devices कहते हैं. तो children, by now as we have studied in earlier chapters, by now you must have understood what is input and what is output device. Now in this chapter we are going to read about the storage device, different types of स्टोरेज डिवाइस. तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखता है या फिर अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करके स्टोर करके रखता है. तो वी आर गोइंग टू रीड कि व्हाट इज़ द स्टोरेज एंड विच आर द डिवाइसेस विच डू द स्टोरेज. तो हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आर फर्स्ट पैरा या फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ स्टोरेज. तो चिल्ड्रन, स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज इज नथिंग बट
कीपिंग एनी इंफॉर्मेशन फॉर अ सेफली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक सेफली रखने को, प्रोटेक्ट करने को हम स्टोरेज कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर इज़ दैट इट कैन स्टोर योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर डज मेनी थिंग्स फॉर अस, या मेनी टास्क फॉर अस, या मेनी work for us, but the main purpose of the computer is to keep the work which we have done on the computer for longer period of time or for the future use। तो सबसे मेन काम होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब चीज़ को याद नहीं रख सकते और फिर हम उसे कहीं और भी सेव करके नहीं रख सकते। इसीलिए हमने वी हैव मेड दिस कंप्यूटर विच हैज़ ग्रेट मेमोरी एंड इट कैन कीप समथिंग फॉर अ मच मोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो भूलता नहीं है और जब हमको चाहिए हम उसको रिव्यू कर सकते हैं या फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, फिर वापस यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक ही काम को हमें बार बार नहीं करना पड़ता है, हमारा समय भी बचता है और हमारा हमें इसे एसेस करने में भी आसानी रहती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फ़ायदे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर इज़, हम वही सारी चीज़ें यूज़ करती हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा होता है। मशीनों तो दुनिया में बहुत सारी बनी, लेकिन सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हुई। वही सक्सेसफुल हुई जिन्होंने हमारे काम को आसान बनाया। तो कंप्यूटर भी इसीलिए बनाया गया था कि इट विल मेक आवर वर्क ईजी। तो ईजी वर्क करने में एक यह भी वर्क है कि यह हमारे जो भी हम काम करते हैं इसको फ्यूचर यूज़ के लिए प्रोटेक्ट करके या सेव करके या स्टोर करके रखता है। तो वंस यू स्टोर योर वर्क इट विल नेवर लास्ट, you can review your work any time. So children, sometimes nowadays we don't have time to take care of few things, so हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको वापस देखेंगे, उसमें जो चेंजेस करने हैं चेंजेस करेंगे और फिर वापस हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है, हमें बार बार एक ही काम नहीं करना पड़ता है और बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके उस चीज़ को फिर वापस हमें करेक्शन करनी पड़ती है। इससे हम क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को बिना मेहनत किए बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरेज। नाउ कंप्यूटर सेव्स एंड स्टोर्स योर फाइल। तो कंप्यूटर ऐसा मशीन है जो हमारे फाइल्स को सेव भी करता है और स्टोर भी करके बहुत लंबे समय तक रख सकता है। सो चिल्ड्रन, स्टोरेज डिवाइसेस, एज आई टोल्ड यू, द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें हम जिन डिवाइस से इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और अ कंप्यूटर कैन स्टोर योर वर्क इन डिफरेंट storage devices. So children, the devices which are used to store these information are called storage devices. So a computer can store your work in different storage devices. So let us see what are these storage devices. These are some of the storage devices are hard disk, compact disk, pen drive, etc. Let us have a look at these storage devices one by one. So children, here are some names of devices which are used for storing the डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस दिए हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जिनको हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। सो लेट अस रीड अबाउट दीज डिवाइसेस वन बाय वन। तो पहला डिवाइस है चिल्ड्रन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर है हार्ड डिस्क की। इस तरह का कुछ हार्ड डिस्क दिखाई देता है एंड दीज आर इनबिल्ट, ये कंप्यूटर के अंदर पहले से ही होता है अंदर। अ हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ फिक्स्ड इन द CPU। ये जो डिवाइस है ये मेन स्टोरेज डिवाइस होता है और ये कंप्यूटर में फिक्स्ड होता है, कंप्यूटर के CPU में
फिक्स्ड होता है. हार्डवेयर इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. सो जो ये हार्ड डिस्क होता है इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड डिस्क. तो ये जो हार्ड डिस्क होता है ये मेन स्टोरेज डिवाइस होता है दैट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU. ये कहाँ फिक्स्ड होता है? CPU के अंदर होता है. और जो हार्ड डिस्क होता है इट इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसको यूज़ करके हम बहुत सारे डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड डिस्क. इसलिए हम इसको हार्ड डिस्क भी कहते या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, अब एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ड डिस्क. अब क्या है? द वर्क you enter into the computer is called data. As I have been telling you कि whatever information we give to the computer we call it as data. जो भी information या instruction हम computer को देते हैं उसे हम data कहते हैं, क्योंकि उसी instruction या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करता है. एंड द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. और फिर उस डाटा को, जो डाटा हमने कंप्यूटर में फीड किया या दिया, वो उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके बाद जो हमको रिज़ल्ट मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो द इंस्ट्रक्शन वी गिव इज़ कॉल्ड डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So children, once again have a look on this. Do you know the work you enter in a computer is called data. तो work you enter का मतलब क्या होता है? Work you enter means कि the information or the data you provide to the computer. और फिर उस डाटा को जब प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो जो भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वी कॉल इट एज, हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डाटा. हम उसको डाटा कहते हैं. लेकिन उसी डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, हम नहीं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमको उसका रिज़ल्ट देता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. मीन्स कि हम डाटा देते हैं, CPU उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमको रिज़ल्ट मिलता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर. सो नाउ चिल्ड्रन, so children, next type of storage device is CD-ROM. So children, CD-ROM means a CD-ROM is a circular shaped disk. As you can see in the picture, you must be using these CD-ROM. children, आप CD को यूज़ करते हो, सेम है ये. और ये सर्कुलर शेप का डिस्क होता है दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा. हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं. हमको कोई इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो हम CD के थ्रू भेजते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड CD-ROM, यूज टू स्टोर डाटा. द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी. दिस कैन ओनली रीड द डाटा. देन द CD-ROM इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोर्टेबल डिस्क. पोर्टेबल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. सो इसीलिए हम इसको दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज CD-ROM और पोर्टेबल डिस्क भी हम इसको कहते हैं, जिसको अगर हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी हमने इसमें स्टोर किया है भेजना है तो हम ईजिली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो CD-ROM इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. Then children, we have DVD. DVD also you must be using, और ये आपने घर में अपने देखा होगा. DVD stands for digital video disc. It is used in it is similar in shape to that of CD-ROM. ये एकदम CD-ROM की तरह ही दिखता है but has a larger कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू द CD-ROM. यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है स्टोरेज की वो CD-ROM से ज़्यादा होती है. इसीलिए
वो उससे बेटर होता है, मतलब जितने CD मेमोरी को स्टोर कर सकती है उससे ज़्यादा DVD कर सकता है। और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू शेप में CD-ROM की तरह ही होता है, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू CD। DVD हैज़ more large capacity to store the data, and CD-ROM or DVD drive. To store and read data from a CD-ROM or DVD, the CD-ROM DVD is inserted into the a drive attached to the CPU। जैसे कि आप जानते हो कि हमको जब भी CD में से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या पढ़ना है तो हम अपने CPU में जो ड्राइव होता है, CD ड्राइव या DVD ड्राइव हम उसको कह सकते हैं, उसमें CD को लगा करके फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है उसको हम रीड करते हैं कंप्यूटर में। तो CD ड्राइव के थ्रू हम CD से या DVD से इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, DVD ये है आपका CPU, और CPU में ये DVD या CD ड्राइव है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड CD और DVD ड्राइव, जिसमें हम CD को लगाते हैं, DVD को लगाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आपने अपने घर में सबको यूज़ करते हुए देखा होगा, अपने बड़े भाई बहन को जो बड़े क्लासेस में पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स बनानी है या कुछ भी करना है, या यू मस्ट हैव सीन योर टीचर ऑल्सो, शी ब्रिंग सम स्टोरीज़, और कोई भी असाइनमेंट है या फिर प्रिंटेड वर्कशीट्स है, तो वो सारे वो पेन ड्राइव में कैरी करते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर, एंड देन दे डिस्प्ले यू ऑन द स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो। वे भी आपको लगा करके दिखाते हैं। तो पेन ड्राइव जो होता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डिवाइस टू स्टोर योर वर्क। जो भी हम काम करते हैं उसको हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, अगर हमको घर की चीज़ स्कूल में देखना है या स्कूल में जो भी हमने काम किया उसको घर में देखना है, तो हम इसमें ईजिली स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एंड पोर्टेबल डिवाइस विथ द हेल्प ऑफ which you can transfer data safely from one computer to another. It is called flash drive. हम पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये पेन ड्राइव है इसके थ्रू भी हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, these are all about the chapter. Here we have studied about different types of DVD, different types of storage devices in the chapter, and understood how we can read the data using these storage devices. So children, once again we'll read the chapter in our next video. Today whatever we have done, we'll once again revise. First of all, we have studied about storage. What is storage? Storage is keeping the information or the data from the computer for a longer period of time. हम उसे कंप्यूटर में उसके कुछ पार्ट जैसे कि हार्ड डिस्क में भी सेव करके रख सकते हैं, या कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो कि हम उसमें लगा करके रीड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी रख सकते हैं, जैसे कि DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और CD-ROM हो गया। तो हम उन सब चीज़ों में जो भी इंफॉर्मेशन या काम हमने कंप्यूटर पे किया है, इन चीज़ों में ले करके उसको हम कहीं सेव करके रख सकते हैं, और जब भी हमको यूज़ हुआ तो वापस हम इनको कंप्यूटर के CPU में लगा करके हम इसको रीड कर सकते हैं, या हम इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर हम इसको किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो हार्ड डिस्क होता है या हार्ड ड्राइव होता है उसमें तो हम वो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है या CPU के अंदर इनबिल्ट होता है, तो जो भी चीज़ें हम उसमें स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में ही स्टोर रहता है। सो स्टोरेज मीन्स कीपिंग एनी इंफॉर्मेशन or data for safely for longer period of time, so that we can use these stored data in future by reviewing it. उसे रिव्यू करके या फिर उसे एडिट करके हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको सेफली बहुत दिनों तक रख सकते हैं ताकि हमको कहीं उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम उसे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो कि कंप्यूटर के CPU में इनबिल्ट होता है, अटैच्ड होता है, उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, या
एक्सटर्नल अटैचमेंट्स जो होते हैं उनमें भी हम इन इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि CD-ROM हो गया, रोम हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और इन सब चीज़ों को एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेके दूसरे कंप्यूटर में भी हम रीड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द devices which are used for storing the data for safely for longer period of टाइम. तो इस चैप्टर में हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा और जाना कि एक्चुअली कंप्यूटर वाज मेड फॉर दिस पर्पस ओनली, कि जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं हम उसको सेफली स्टोर करके रख सकें, और उनसे स्टोर करने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस, एंड दीज डिवाइसेस आर hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive. So children, this is all for today's class. We'll continue the same chapter once again in our next video, and then we'll do the book exercises. Till then, thank you.